نے ان کا نام بہت سنا ہوا ہے. میرے ساتھ بھی ملاقات اس طرح دل مشافہ ملاقات یہ پہلی دفعہ ہے. میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے. آرگنائزیشن میں اکثر ان کے تعلق سے بات چیت ہوتی ہے، اور اب یہ بہت بڑا استحقاق ہمارے لیے ہے کہ خدا کے خالق کا جب مجھے پتہ چلا کہ وہ پاکستان میں ہیں، یہ امریکہ میں وہاں پر خدمت کر رہے ہیں خدا کے خالق، اور مجھے پتہ چلا کہ یہ پاکستان میں ہیں، تو میں نے کہا فائدہ اٹھایا جائے اور خدا کے خالق سے خدا کا زندگی بخش کلام جو ہے وہ سنا جائے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہم کلیسیا کو اور ہم سب کو برکت ملے. تو میں خدا کے خادم سے ریکویسٹ کروں گا پلیز وہ سامنے آئیں اور ایک خوبصورت سی مالا ہم ان کو پہنانا چاہتے ہیں. ٹوکن آف لو، اپنی محبت کا اظہار. تالیاں کچھ کر رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کی خاص طور پہ لوگوں کی تالیاں کبھی تھوڑیاں تالیاں نہیں ہوتی ہیں. یہ اخلاق صاحب کے انتظامیہ نے محفوظ کیا، اور اس کے بعد ماسٹر پال صاحب کی اور اس کے بعد ہم مائگریٹ کر رہے ہیں امریکہ میں. آپ کے ساتھ اس کے بعد یہ تمہارا مجھے یاد رہے گی، اس کی تصویر بن گئی کہ آپ کی محبت کتنی عظیم ہے، کتنی قدرفل ہے، اور کتنی دلوں سے محبت آپ نے کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. میرے ساتھ ایک حوالہ نکالے 18ویں آیت سے. جب وہ تنہائی میں دعا کر رہا تھا اور شاگرد اس کے پاس تھے، تو ایسا ہوا کہ اس نے ان سے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا، یوحنا بپتسمہ دینے والا، اور بعض ایلیا کہتے ہیں، اور بعض یہ کہ قدیم نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا. اس نے ان سے کہا، لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پطرس نے جواب میں کہا کہ خدا کا مسیح. اس نے ان کو تاکید کر کے حکم دیا کہ یہ کسی سے نہ کہنا، اور کہا ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کاہن اور فقیہ اسے رد کریں اور وہ قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے. اور اس نے سب سے کہا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے اسے بچائے گا. اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کو کھو دے یا اس کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ جو کوئی مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا، ابن آدم بھی جب اپنے اور اپنے باپ اور پاک فرشتوں کے جلال میں آئے گا تو اس سے شرمائے گا. خدا ان کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر. آمین. مسیح یسوع پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے گئے تو یہاں لکھا ہے کہ وہ ساتھ تھے، لیکن وہ اکیلا، یعنی ان کو چھوڑ کر تھوڑا سا علیحدہ ہو کے وہ دعا کر رہے تھے. اور پھر
शागिर्दों से एक सवाल किया है, जो ये सवाल मेरे लिए भी है और आपके लिए भी। शागिर्द चूँकि मसीह के साथ रहते थे, बहुत से लोग, भीड़ उनके इर्द गिर्द होती थी हज़ारों की तादाद में, तो लोग मसीह के मुतल्लिक़ बातें ज़रूर करते थे। इसलिए मसीह ने शागिर्दों से पूछा कि लोग मेरे मुतल्लिक़ क्या कहते हैं, मुझे क्या कहते हैं। और किसी ने कहा कि वो समझते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, और किसी ने कहा कि लोग समझते हैं कि ये तू एलिया है, और बाद ने कहा कि वो समझते हैं कि जो अंबिया पहले हो चुके उनमें से कोई नबी आ गया। मसीह ने एक अहम सवाल किया कि ये जो कुछ भी लोग कहते हैं, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो। और आज मुझसे और आपसे ये सवाल है कि आप मसीह को क्या कहते हैं। लोग बहुत कुछ कहते हैं। लोग कहते हैं कि ही वॉज ए ग्रेट मैसेंजर ऑफ गॉड, ही रेज द डेड, उसने अंधों की आंखें खोली और उसने बहुत से मोजरात किए। वो एक अजीम नबी था, उस जैसा कोई नहीं। जैसी उसकी पैदाइश हुई वैसी किसी की पैदाइश नहीं है। और वो परिंदों को मिट्टी के परिंदे बनाकर उनमें दम फूंकता और वो जिंदा हो जाते। जो काम उसने किए उस जैसे किसी ने नहीं की। लेकिन वो खुदा नहीं है, वो खुदा का बेटा नहीं। लेकिन आज आपसे सवाल है कि आप मसीह को क्या समझ। पतरस ने कहा कि तू मसीह, खुदा का मसीह है, क्राइस्ट ऑफ द लॉर्ड। और दूसरी अनाजील में लिखा है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। मसीह से मुराद है मखसूस किया हुआ, मसा किया हुआ। किस काम के लिए? निजात देने के लिए। तो इससे मुराद ये है कि निजात देने के लिए एक ही नाम मखसूस किया गया है या मसा किया गया है, और वो नाम यीशु है। पतरस ये दरअसल में कह रहा है, तेरे नाम के अलावा दुनिया में अंबिया में से, रसूलों में से, मुकद्दसीन में से, मज़ाहिब में से किसी को मखसूस नहीं किया गया कि वो निजात दे। इसलिए ज़मीन के ऊपर, आसमान के ऊपर, आसमान के तले या ज़मीन के तले कोई नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। कौन कौन निजात पाना चाहता है? सब नहीं पाना चाहते। बहुत शुक्रिया। लेकिन इन आगे कुछ आयात हैं, फिर मसीह ने कहा कि फिर तुम्हें ये करना पड़ेगा और फिर निजात के लिए तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। मसीह ने जब पतरस को कहा तो एक और बात भी दूसरी जगह पर लिखा है कि पतरस, बुनियादी तौर पर जो मुकाशवा तुझे मिला है कि मैं जिंदा खुदा का बेटा यीशु, इस पर एक कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। इसके बाद इस वजह से कलीसिया सारी ज़मीन पर वो बढ़ रही, तरक्की कर रही है, बावजूद अपनी कमज़ोरियों के। वो बहुत सौ के लिए, दुनिया के लिए बाइस बरकत है। ये बहुत कीमती है। आदम की दुल्हन उसकी पसली से निकाली गई और वो बड़ा खुश था। और आप जो मसीह के खून से धुल जाते हैं वो मसीह की दुल्हन का हिस्सा बनते हैं, सारे नहीं। कलीसिया मसीह की दुल्हन का हिस्सा है और ये कलीसिया मसीह के पसली में से निकली है। जब बरछी मारी गई और खून और पानी बह निकला, उस खून में धुल जाने के बाद हम पाक हुए हैं, हम मसीह के कलीसिया के हिस्सा बने हैं। तो कलीसिया इंतहाई कीमती है। आप बहुत कीमती हैं क्योंकि आप मसीह के खून से, आप आदम की उसकी दुल्हन उसकी पसली से, लेकिन मसीह की कलीसिया, मसीह की दुल्हन उसकी पसली से निकली है। इसलिए आप बहुत कीमती हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक। हालेलुया, हालेलुया। और जो बात मसीह ने आगे कही है उसको हम देखेंगे।
कुछ आयात की तफसीर छोड़ देंगे, लेकिन तेईसवीं आयत से देखें। और उसने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज़ अपनी स्लीब उठाए और मेरे पीछे हो, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाता है वो उसे खोएगा। आइए हम एक आयत को सारे मिलकर पढ़ते हैं। यहाँ जो लिखा है, उसने कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे। ये जहान है, अगर कोई उसकी जगह आप अपना नाम पढ़े, अगर सरवर मेरे पीछे आना चाहे, अगर पास्टर पाल मेरे पीछे आना चाहे, आप उनकी जगह पे अपना नाम रखें और फिर हम इस आयत को पढ़ेंगे और आप महसूस भी करें कि ये बात मुझसे हो रही एक एक से। और आइए हम पढ़ते हैं इसको मिलकर 23वीं आयत। और उसने सबसे कहा, अगर सरवर मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज़ अपनी स्लीब उठाए और मेरे पीछे। आइए दोबारा पढ़ें, आप लोग बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे अपना नाम। सबसे कहा, अगर सरवर मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से और हर रोज़ अपनी स्लीब उठाए और मेरे पीछे बोले। अगर हम यीशु के पीछे आना चाहें और सब यीशु के पीछे आना चाहते हैं तो फिर जो कुछ मसीह ने कहा है वो भी करना। ये डेली असाइनमेंट है हर शख्स के लिए, मेरे लिए, हर बिलीवर के लिए। ये हर रोज़ का एक असाइनमेंट है कि हमने उसके पीछे चलना है। लेकिन जो पहली बात यहाँ कही गई है कि वो अपनी खुदी से इनकार करे, तो डिनाई हिमसेल्फ, मैं अपनी खुदी से इनकार, आप अपनी खुदी से इनकार करें, अपने आप को डिनाई लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल, मैं, मेरा, मेरी चीज़ें, मेरी बरादरी, मेरी हैसियत, मेरा मकाम, मेरा ओहदा, ये मैं, मेरी मिनिस्ट्री, मेरी खिदमत और मेरा असर और रसूख। और बाज़ दफ़ा चर्च में मेरी हैसियत, मैं सेक्रेटरी हूँ, ये मेरी हैसियत। लोग मेरा और मैं, ये सारी बातें वो करते रहते हैं। और खुदी से इनकार, अपने आप से इनकार, ये काम तो बज़ाहिर बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मसीह ने इसका नमूना दिया है यूहन्ना की अंजील में। जब मसीह ने शागिर्दों के पाँव धोए तो वो पाँव धोने के बाद वो कपड़े पहनकर बैठ गया। अगर 13वां बाब यूहन्ना की अंजील निकालें मेहरबानी से, उसकी 12वीं आयत से पढ़ें। यूहन्ना 13वां बाब, ये साथ साथ पढ़ते रहें ताकि गर्मी की वजह से किसी को नींद ना आ जाए। 13वें बाब की 12वीं आयत में ये उस सारे वाक़या के आखिर में यहाँ लिखा है, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए तो तुम पर भी फ़र्ज़ है कि एक दूसरे के पाँव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी एक दूसरे के साथ किया करो। तो मसीह ने एक नमूना, डिनाई योरसेल्फ, मसीह ने अपने आप को इसका, अपनी खुदी का इनकार करके अपने आप को अपने सामने अपने शागिर्दों को एक नमूना दिया है। और फिर ये कहा कि अगर मैं खुदावंद और उस्ताद हूँ और तुम मुझे खुदावंद और उस्ताद कहते हो, तो जब मैं खुदावंद होकर मैंने तुम्हारे पाँव धोए हैं तो तुम पर भी लाजम है कि एक दूसरे के पाँव धोया करो। इसका मतलब है कि जिस तरह मैं छोटा बन गया, मैं खादिम बन गया, इस तरह तुम भी एक दूसरे के लिए खादिम बनो। और
मसीह से ये सवाल किया गया रूहुल कुद्स के नज़ूल से पहले कि खुदावंद हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आ गए हैं, तो हमें क्या मिलेगा। एक तो ये सवाल कि शागिर्द रूहुल कुद्स की कुव्वत के से पहले वो चाहते थे कि इसकी बादशाही में हमें क्या मिलेगा। फिर शागिर्दों में तोड़ जोड़ भी होता था, और जिन कलीसियों में आज तोड़ जोड़ होता है, बड़े दुख की बात है। उन्होंने दो भाइयों ने मशवरा किया कि हम कोशिश करें कि हम बड़े ओहदे मिल जाएं, तो वो अपनी वालदा को साथ लेकर मसीह के पास गए, और उस माँ ने कहा कि ऐ यसू, पहले तो उन्होंने सिजदा किया, फिर कहा ऐ यसू, जब तू अपनी बादशाही कायम करे तो मेरा एक बेटा तेरे दाहिने हाथ और दूसरा, यानी तेरी बादशाहत में मेरा एक बेटा तो वज़ीर ख़ारजा और एक बेटा वज़ीर दाखिला, और हम तेरे करीब होंगे, बादशाहत में हमारा असर व रसूख होगा। फिर वो बाकायदा हाथों से लड़ना की भी कोशिश करते, पतरस ने कान काट दी। फिर वो दूसरों को अपने साथ सिर्फ देखना चाहते थे, अपने से अलावा नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने आगे मसीह को शिकायत की कि खुदावंद एक शख्स को हमने देखा है, वो तेरे नाम से बदरूएं निकाल रहा है, हम उसको मना करना चाहते थे। मसीह ने कहा उसको मना मत करो, जब वो मेरा नाम इस्तेमाल कर रहा है, जब वो मेरी ताकत इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर वो मेरे खिलाफ कैसे हो सकता। तो जो हमारे खिलाफ नहीं है वो हमारे साथ हैं। और फिर बड़ा बनने की कोशिश, जब शागिर्दों में उस वक्त तक ये बात थी जब रूहुल कुद्स उनको मददगार नहीं मिला था, लेकिन आज हम पेंतीकोस्टल हैं, यानी हमें रूहुल कुद्स का ईद पेंतीकोस्त का तजर्बा हो चुका। सब पेंतीकोस्टल, मैं भी हूँ, और हम फ़ख्र से बताते हैं कि हम पेंतीकोस्टल चर्च के मेंबर हैं। और आज भी अगर कलीसियाओं में बड़ा बनने की कोशिशें की जाएंगी तो वहाँ झगड़े ही होंगे। जहाँ बड़ा बनने की ख्वाहिश होगी, कोशिश होगी, वहाँ रूहुल कुद्स का काम नहीं होगा, रूहुल कुद्स से यूनिटी नहीं होगी। वहाँ मतलब परस्ती होगी, वहाँ सियासत होगी, वहाँ मुनाफकत होगी, वहाँ झूठ नुमा सच होगा या सच नुमा झूठ होगा, रूहुल कुद्स का काम नहीं होगा। तो कलीसिया, मैं दरअसल ये कहना चाहता हूँ कि हमें उसे अगर पीछे चलना है, अपनी खुदी से इनकार करना है, तो फिर हमें इन चीज़ों से भी इनकार करना है। इन चीज़ों को छोड़ देंगे तो फिर हम अपने आप से इनकार कर सकेंगे, ताकि यीशु के पीछे हो सके। मसीह ने ये शर्त है हमारे लिए, ये हुक्म है कि अगर कोई मैं या सरवर, पास्टर पाल, कोई भी बड़े से बड़ा खादम हो, मिनिस्टर हो, कलीसिया का कोई फर्द हो, अगर वो यीशु के पीछे चलना चाहता है तो फिर उसे अपने आप से इनकार करना है। पतरस अपोलोस रसूल ने फिलिपियों की कलीसिया को खत लिखते अगर हम देख लें मेहरबानी से, फिलिपियों के नाम और उस रसूल का खत, और एक बड़ी बात, इसे यहाँ दूसरे बाब की पहली आयत से मैं पढ़ता हूँ। बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमई और रूह की शराकत और रहम दिली और दर्दमंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तो फ़र्क़े और बेजा फ़ख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फ़रोतनी से एक दूसरे को, और हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरे के अहवाल पर भी नज़र रखे। आगे आइए हम 5वीं आयत सब मिलके पढ़ते। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। और आगे उसकी तफसीर है कि उसने आसमान को छोड़ दिया और खादम
بن گیا. جب رسول کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا ہونا ہے تو مسیح نے کہا اگر کوئی بڑا بننا چاہے تو وہ غلام بنے. اپنی خودی سے انکار کرے, اپنی حیثیت سے انکار کرے, صرف مسیح یسوع کا اقرار کرے تو پھر وہ میرے پیچھے چلنے کے لائق ہوگا. اور یسایہ کی کتاب میں 52 باب 53 باب میں آپ پڑھتے ہیں کہ جب اس نے دکھ سہا تو لکھا ہے نہ کوئی شکل و صورت ہے نہ کوئی خوبصورتی ہے کہ ہم اس کے دیدار کے طالب ہوں. اس کی صورت بگڑ گئی سب سے زیادہ اور اس کا چہرہ بگڑ گیا. اور کلیسیا آج اگر مسیح کا چہرہ نہ بگڑتا تو ہمارے چہرے بگڑ چکے ہوتے. آپ جو کلیسیا بے حسن و جمال ہے, خوبصورتی ہے, یہ خوبصورتی نہ ہوتی کیونکہ یہ خوبصورت وہ اس کا چہرہ بدصورت بن گیا, حسن و جمال ختم ہو گیا, اسے مارا گیا, اسے کانٹوں کے تاج سے اس کو اذیتیں دی گئی اور اس کا مذاق اڑایا گیا اور اس کا چہرہ بگڑ گیا, شخصیت بگاڑ دی گئی. لیکن اگر ایسا نہ ہوتا تو آج ہماری شکلیں اتنی خوبصورت, حسن و جمال نہ ہوتا اور ہمیں نجات کی راہوں کا پتہ نہ ہوتا, ہم اس کے پیچھے چلنے کے لائق بھی نہ ہوتے. ایک آپ نے کبھی انار دیکھا؟ یوئل کی کتاب میں اس کا دیکھا پھلوں کا, کھایا بھی ہے. انار بہت خوبصورت ایک پھل ہے اور صحت کے لیے بہت اچھا ہے اور اسے بہت سی تشبیہات دیتی, اور اس کے دانوں کو دانتوں سے تشبیہ دی جاتی ہے اور غزل و غزلات میں اس کی تعریف کی گئی. اور جو اس نے محبوبہ کی دلہن کی تعریف کی ہے, یہ ایک جگہ لکھا ہے کہ تیرے جبڑے تیرے نقاب کے نیچے گویا انار کے ٹکڑے. وہ محبوبہ کو یعنی حسن سے بھی تشبیہ دی گئی ہے. پھر اسے کہا جاتا ہے کہ ایک انار 100 بیمار, یعنی ایک انار سے 100 طرح کی بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے. یہ بہت مفید ہے صحت کے لیے بھی. لیکن اس میں ایک نقص ہے جس کی وجہ سے یہ مفید ہے اور حسن سے تشبیہ دی جاتی ہے. وہ ایک نقص ہے. اس کا نقص یہ ہے کہ اس کے سارے دانے ٹیڑھے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ چھوٹا سا انار کاٹیں, میں اپنی بہن کے پاس فیصل آباد گیا تو اس کے انار کے پودے سے میں نے کچا ایک انار تھوڑا سا توڑ کر اس کو کاٹا تو اس کے دانے گول تھے. لیکن جب وہ مفید بنتا ہے صحت کے لیے تو اس کے دانے ٹیڑھے ہوتے ہیں. اس کا سبب یہ ہے اس میں خودی سے انکار ہے. جب وہ دانے بڑھتے ہیں تو کوئی دانہ اس کو پیچھے دھکیلتا نہیں, خود ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور اس کو ڈیولپ ہونے دیتا ہے, بڑھنے دیتا ہے. اس طرح دوسرا دانہ جب وہ بڑھنے لگتا ہے تو وہ بھی اس کو ریباؤنڈ نہیں کرتا, وہ خود ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور اس کو ڈیولپ ہونے دیتا ہے, بڑھنے دیتا ہے. اس طرح وہ دوسروں کی فکر کرتے کرتے سارے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. اور مسیح کا چہرہ اسی لیے بگڑ گیا تو اس نے ہمیں ڈیولپ کرنے کے لیے اور سارا دکھ اٹھایا, حسن و جمال چلا گیا تاکہ ہم ڈیولپ ہو سکیں, نجات تک بڑھ سکیں. اور جب وہ اس طرح سے اگر کلیسیا میں یہ خوبی ہو, یہاں یہ جو ہم نے فلپیوں کے خط میں جو پڑھا ہے وہ یہی بات ہے کہ ہم دوسروں کو ڈیولپ ہونے دیں. ہر ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر, یعنی ہر ایک شخص دوسرے شخص کو اپنے سے بہتر سمجھے. یہ یہاں لکھا ہے اور پولس رسول اسی کی خواہش کر رہا ہے. اور یکساں محبت رکھو, ایک دل. کیا کبھی ایسا ہوتا ہے خاندانوں سے اگر شروع کریں تو بعض دفعہ تو ماں باپ سارے بچوں سے یکساں محبت نہیں رکھتے, اور یوسف اسی وجہ سے مصر میں بیچا گیا, اور اس لیے کہ وہاں یکساں محبت خاندان میں نہیں, ایک کو زیادہ اور دوسروں کو کم, خاندانوں میں بھی. اور پھر ایک اور بات, کلیسیا میں بھی ایسا ہوتا ہے. مسیح کہتا ہے
कि यकसां सबसे एक जैसी मोहब्बत रखो। और वो लिखा है बाइबल में, मसीह यीशु जाने से पहले, मसलूब होने से पहले जैसी मोहब्बत वो उनसे रखता रहा वैसी मोहब्बत आखिर तक रखता रहा। तो एक जैसी मोहब्बत। फिर मसीह का मजाज ये है कि उसने हमें डेवलप होने दिया और ख़ुद वो उसने दुख उठाए और वो उसका चेहरा बिगड़ गया। तो आज अगर हम इन बातों पर अमल करते हैं, ख़ानदानों से शुरू करें, बच्चों से शुरू करें, अपने रवैये से शुरू करें कि क्या हम यकसां मोहब्बत रखने की प्रैक्टिस करते हैं, क्या हम दूसरों को अपने से बेहतर समझते हैं, क्या हम तोड़ जोड़ करके सिफारिश तो नहीं कर रहे कि हमें बड़ा ओहदा हम बड़ा बनने की कोशिश तो नहीं कर दूसरों से। वह आज भी कलीसिया में जो मसीह ने कहा कि जो हमारे खिलाफ नहीं हमारे साथ है, आज भी कलीसिया में मसीह ने कहा कि शागिर्द बनाओ और हम मेंबर बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरे चर्च वालों के हम पेंटिकॉस्टल है, हमारी रस्में बहुत अच्छी हैं, हमारे चर्च आया कर, यानी उत्थे तुसी इबादत नहीं करनी, असी दुध तो नहाते हुए हैं, तुसी साढ़े नाल आके इबादत करो, असी बड़े रूहानी हैं। मैं बाइबल कॉलेज जाना चाहता था कराची में, तो वहाँ डिस्प्यूट हो रहे थे। तो पादरी जेरल्ड मल मेरे एक दोस्त थे जो आसमान पर चले गए। मैं यहाँ आ गया FJ में, तो अगे पता चला यहाँ भी वही कुछ हो रहा। तो यकसां मोहब्बत, एक दूसरे से हमदर्दी, इसमें आगे बढ़ेंगे तो हम दूसरों के लिए बाइस बरकत होंगे। आइए एक और अगली बात जो उसने कहा कि हर रोज़ अपनी सलीब उठाए। सलीब आज तो हमारे लिए इज़्ज़त का निशान है, आज तो हमारे लिए फ़ख्र का निशान है। बहुत से लोगों ने बावजूद माहौल का ख़तरा होते हुए उन्होंने अपने रिक्शों पर ऐसी आयात लिखी, सलीब बनाई। हम गले में सलीब डाल, वो ईयर रिंग में सलीब बनती है, और चर्चेज़ में, घरों में, और बाज़ दफ़ा अपने दफातर में भी सलीब का निशान बनाते हैं। ये हमारा फ़ख्र है। लेकिन पहली सदी में जब मसीह ने ये बात उनको कही थी कि हर रोज़ खुदी से इनकार करे और हर रोज़ अपनी सलीब उठाए, यानी ये डेली असाइनमेंट भी है और हर रोज़ उठाना सलीब। तो शागिर्द भी हैरान होते होंगे उस वक़्त सलीब उठाना, कोई क्रिमिनल सलीब उठाया करते थे। ये शर्मनाक बात, ये लानत की निशानी थी। और जो सलीब उठाया होता था लोग उससे डरते थे और नफरत करते थे, और उसके अजीज़ों खारिबी दोस्त भी छुप जाते थे ताकि ये ना पहचाने जाए कि हम इसके साथ रहेंगे। आपको पता वो जब मसीह अदालत में उनको पेश किया जा रहा था तो किसी ने कहा कि पतरस को ये भी उसके साथ, तो वो इनकार कर गया, बल्कि लानत की कसम खा गया और वो बाहर चला गया। लोग वहाँ डरते थे, ये लानत की निशान है। और सलीब उठाने वाला चूँकि क्रिमिनल मुजरम होता, इसलिए शागिर्द भी हैरान हुए होंगे कि हम सलीब उठाएं तो फिर हमारा क्या होगा। सलीब उठाने वाला शख्स वो जिंदा नहीं रहता था। सलीब उठाने वाला शख्स लानती, बुरा शख्स, नापसंदीदा और खौफजदा होता था, और जो उसके लोग थे वो भी ऐसे ही थे। आज भी सलीब उठाने का हुक्म है कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो हर रोज़ अपनी सलीब उठाए। सलीब जो शख्स उठा लेता तो वो मौत के निशान तक जाता और मसलूब हो जाता। टेकिंग क्रॉस इज द वन वे ट्रिप टू डेथ। वो वापस नहीं आता, वो एक तरफ की टिकट है। जिसने सलीब उठा ली, और रोमी दौर में जब ये बात कही गई, सलीब उठाने वाला उसको छोड़ के या फेंक के भाग नहीं सकता। अब वो मौत की तरफ जाएगा, और जहाँ सलीब वहाँ खुद ले जाएगा, वो उसको मसलूब कर दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा और वो मर जाएगा। लेकिन जब ये खतरनाक बात तो है कि जो सलीब उठाया हुआ है उसकी ज़िंदगी अब वो ज़िंदा नहीं,
जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो बपतिस्मा का एक मतलब है डिबोना, और जब मैंने बपतिस्मा लिया सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च से, उस लगभग 7 डे एडवेंटिस्ट उनको कहते थे गोता मिशन। तो स्लीप का बपतिस्मा का मतलब भी गोता देना, डुबोना या रंगना। हम यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा लेते हैं, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक। तो जब कोई चीज़ डुबो दी जाती है तो वो पूरी की पूरी उसका रंग बदल जाता है। लाहौर में एक फूल बिकता है लंबा सा, वो जब वो डिलीवरी आती है, मैंने एक दुकान पे कुछ देर खड़े होकर देखा तो वो सारे के सारे वाइट होते हैं, लेकिन जब सुबह को बिकते हैं तो कोई पीला है, कोई नीला है, कोई रेड है, और बड़े खूबसूरत। तो मैंने खड़े होकर देखा कि वो फूल को एक बकेट में रंग भरा होता है, पानी होता है रंगदार, उसमें रख देते और सुबह तक वो रंग उनकी नालियों से ऊपर सरायत कर जाता है, और सुबह के वक्त तो ब्यूटीफुल कलर होते हैं, येलो, ग्रीन और ब्लू और रेड, तो उनमें रंग आ जाता है। ईमानदारों, आपने कब से बपतिस्मा लिया, कब से डुबोए गए? क्या मसीह का रंग आपकी जिंदगियों में आया? और अगर हमने मसीह के नाम से, क्या उसके नाम में जो खूबियां हैं, वो हलीम है, फरोतन है, वो खादम है, वो गुलाम है, वो मारा गया, उसने दर्दें सही, बल्कि मौत भी गवारा कर ली, मसलूब लान की मौत। क्या ये खूबियां कलीसिया में, बिलीवर्स में आ गई? अगर नहीं आई तो आज फिर खुदावंद कहता है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो हर रोज़ अपनी स्लीब उठाए, तो फिर हम उसके पीछे चलने के लायक हो। दूसरी बात, ये दुख उठाना इस दुनिया में लगता तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बेफायदा नहीं है। जब कोई शख्स, पौलुस रसूल कहते हैं, मेरा जी तो चाहता है मैं कूच करके मसीह के पास जानूं, जिसका मतलब है कि मेरा जी चाहता है कि मैं मर जाऊं, तो वो उसने ऐसी ही मौत इख्तियार की थी। वो तो उसको कोड़े लगे, बहुत बार वो अधूरा छोड़ दिया गया, उसको जहाज़ टूट गया, उसके दोस्त उसे छोड़ के चले गए, उसको मारा भी गया और घायल भी किया गया, वो सलीब उठाए रहा। लेकिन फिर वो कहता है कि ये जो सारी मुसीबतें हैं, इसको कहते हैं दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अज़हद भारी इनाम पैदा करती। तो जो मसलूब हो जाएगा, जो स्लीब उठाएगा, वो मरा हुआ होता है। हमारे जो जैसे बपतिस्मा ले लिया, जो मैं मसीह के साथ मरा, मसीह के साथ दफन हुआ, मसीह के साथ जी उठा, तो उसमें तो वो मिजाज होना चाहिए। हमारा मिजाज तो जिस मसीह जैसा है, हम जितने बड़े भगत हों, बड़े अच्छे पादरी हों, बड़े हलीम हों, बड़े अच्छे मजलिस, हमें कोई थप्पड़ मार दे, हमारा रिएक्शन क्या होता है? हमें कोई बुरा भला कह दे, हमें कोई दुख दे, तो हमारे चेहरे बिगड़ जाते हैं। मरे हुए शख्स को अगर कोई ठोकर मारे तो उसका कोई रिएक्शन नहीं होता, लेकिन हम बज़ाहिर मसीह के साथ मर चुके होते हैं, लेकिन हम मौका देखते हैं कब हम उससे बदला लें। तो कलीसिया मसीह के मजाज को अपनाना है, उसके साथ मसलूब होना है, अपनी स्लीव हर रोज़ ये दुखों की उठाना है, हर रोज़ याद रखना है कि मैं मसीह का पैरोकार हूँ। मेरे रवैये मस्जिद जैसे, क्रिश्चियन मीन्स लिटिल क्रिश्चियन, तो क्या मैं मसीह जैसा हूँ? इस पे आगे ज़िंदगी। और फिर ये बेफायदा नहीं, जैसे ही एक स्लीब बरदार मरता है तो फिर वो अगली दुनिया में चला जाता है, जहाँ मुकाशफा की किताब में लिखा है सोने की सड़कें होंगी। एक दरिया, जिंदगी का दरिया, एक दरख्त है जिसमें 12 महीने फल लगते हैं, उसको वो वार पार, और वहाँ नूर है, बड़े के चेहरे का नूर, बाप के चेहरे का नूर, वहाँ कोई दुख नहीं, वहाँ कोई आंसू नहीं, वहाँ शादमानी है, खुशियाँ हैं, कोई मौत नहीं, किसी की परेशानियाँ नहीं है। तो स्लीब बरदार मरने के बाद उस दुनिया में मुंतकिल हो जाता है, वो ट्रांसफ़र हो जाता है। और डॉक्टर बिली ग्राम ने मरने से पहले कहा कि मैं ख़त्म होने वाला नहीं हूँ,
میں اپنا ایڈریس بدلنے والا ہوں، میں ایک دوسرے ایڈریس میں چلے جاؤں۔ تو ایماندار اگر سلیب اٹھاتا ہے، دکھوں سے گرتا ہے، مسیح کا مزاج اپناتا ہے، تو وہ اگلی دنیا، اس کا ایڈریس چینج ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتے، زمین ایک کو بیچی جائے تو دوسرے کے نام انتقال کر جاتی ہے، اس طرح۔ اور یہی پولس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں انتقال کر کے مسیح کے پاس جا رہا ہوں۔ کلیسیا یہ خیال رکھنا ہے، اب تک اگر ہم نے نہیں تو پھر ہمیں اور آگے بڑھنا۔ تیسری بات پھر کہا کہ وہ میرے پیچھے ہو لے، ڈینائی یور سیلف، پک اپ یور کراس ایوری ڈے اینڈ فالو می۔ مسیح کے پیچھے چلنا کیا؟ فالوئنگ جیزس از سم تھنگ مور دین بلیونگ جیزس۔ یسوع پر ایمان لانا، اس کے پیچھے چلنا، اس پہ ایمان لانے سے کچھ بڑھ کر ہے، اس سے آگے کی بات۔ ایمان تو بہت سے، ایمان تو کئی سکالر کہتے ہیں I believe that Jesus Christ, peace be upon him, is a great messenger of God. I believe, I follow, I obey. وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو ایمان مکمل نہیں ہوتا، لیکن بلیو کرنا وہ مسیح کی تابع داری نہیں کرتے۔ مسیح نے کہا کہ اپنی خودی سے انکار کرو، اس بات کو نہیں مانتے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہوئے بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور کلام میں لکھا خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح ہے کہ صرف وہی ویسا کیا گیا، وہی نجات دہندہ۔ اس مسیح نے دعویٰ کیا کہ کون مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے۔ آپ کوئی کتاب پڑھ لیں، کوئی مذہب، کسی کو بھی آپ سٹڈی کریں، نہ رسولوں، نبیوں، مقدسین، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ کون مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے۔ اب کہا بھی کن کو؟ وکیلوں کو، وہ جو ڈاکٹر، وہ لا ڈاکٹر تھے، بیرسٹر تھے، اہل شریعت تھے۔ وکیل جو ہیں وہ نقص ڈھونڈتے ہیں اور پھر مجرم کے اپنے مخالف شخص کے خلاف وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو وکیلوں کا کام یہ ہے، یا تو اپنے شخص کو، اپنے جس کے وہ جو اپنے کلائنٹ کو بچانے کے لیے کچھ اس کی فیور کی خوبیاں ڈھونڈتے ہیں، یا دوسرے کو سزا دینے کے لیے نقائص ڈھونڈتے ہیں، شواہد ڈھونڈتے ہیں، اور پھر وہ ثابت کرتے ہیں۔ مسیح نے ان لوگوں سے کہا جو نقص تلاش کر سکتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، انہیں کہا کہ کون مجھ میں گناہ ثابت۔ اور غیر مسیح بھی یہ کہتے ہیں کہ جس طرح مسیح نے خدا کی تابع داری کی، کسی نے نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں تھا، وہ صرف نجات دینے کے لیے چنا گیا ہے، مسح کیا گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ کلیسیا آپ کو کوئی بھی کچھ کہے، آپ کو بڑے پریشر ہوں گے، آپ کالج یونیورسٹی جاب پر آپ پہ بہت سوالات کیے جائیں، لیکن آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ایمان کا دفاع اس طرح کر سکیں کہ مسیح کے علاوہ کوئی نام نہیں بخشا گیا جو ہمیں نجات دے سکے۔ مسیح نے کہا الفا اور اومیگا میں، ابتدا اور انتہا میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے اور پھر مسیح کے پیچھے چلنا ہے۔ مسیح کے پیچھے چلنا مسیح پر ایمان لانے سے زیادہ بڑھ کر ایک دو یہ ڈیلی کے کام ہے، ڈیلی بیسس پہ، لیکن ساری عمر اس کے پیچھے چلنا ہے۔ یہ مشکل کام ہے۔ ایک مثال پر ہم دعا کریں۔ ایک نوجوان تھا کرتار سنگھ، اس کا نام تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب سادھو سندر سنگھ وہ مسیح کے پیروکار ہوئے اور وہ تبت کے علاقے میں جاتے تھے۔ ایک جگہ پہ ان کو ایک خاندان ملا جس کو پادری اور جس کو سادھو سندر سنگھ نے بیپتسمہ دیا۔ ان لوگوں نے ایک بات بتائی
کہ یہاں ایک نوجوان کرتار سنگھ آیا تھا، وہ ینگ تھا، وہ انجیل سنا، اس نے کہا کہ یسوع مسیح نجات دیندا ہے، اس کے علاوہ کوئی نجات نہیں دے سکتا، تو یسوع آنے والا ہے، مسیح کو قبول کر لو۔ تو جو لاما تھا، دلائی لاما، وہ سیاسی لیڈر بھی ہوتا تھا اور مذہبی لیڈر، اس نے اس کو منع کیا، پھر وہ نہیں منع ہوا، پھر ایک دن اس کے ناخن نکال دیے، پاؤں کے بھی اور ہاتھوں کے بھی، اور پھر اس کو کہا کہ آئندہ یہ نام نہیں لینا، لیکن وہ پھر وہاں آگے منادی کر رہا تھا۔ تو پھر انہوں نے اس کو پکڑا، ایک نیل گائے، ایک پہاڑوں میں ایک گائے ہوتی ہے، اس کا تازہ چمڑا لے کر اس میں اس کو سی دیا، گول کر دیا اور دھوپ میں رکھ دیا۔ ایک جو سپاہی جو چوکی دار تھا، ایک وہ وہاں پہرا دے رہا ہے، 3 دن کے بعد اس کو کھولا گیا تو وہ ابھی زندہ تھا، ایک ہمت ابھی اس میں نہیں تھی لیکن زندہ تھا۔ وہ سادھو سندر سنگھ کہتے شاید وہ تنو مت جوان تھا، اس لیے اس نے اشارے سے اپنی انجیل کو کہا کہ مجھے دو، اور لکھنے کے لیے بھی کہا۔ تو اس نے بائبل کے اس حصے میں جو وائٹ ہوتا ہے اس میں ایک شعر لکھا، غور سے سنیں گے، اس کے پیچھے چلنے کی قیمت دینا پڑے۔ اس نے لکھا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ کہنا کہ میرے حق تو یہ تھا کہ سارے علاقے میں اس کا نام پھیلاتا، انجیل پھیلا دیتا، لیکن میں نے صرف جان دی ہے، اور وہ بھی اپنی نہیں، وہ بھی اس کی تھی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ہم تو بڑا فخر کر جاتے ہیں بعض دفعہ کہ میری منسٹری میں یہ ہوا، ایسا بات ہوتا، بزرگوں سے میں یہ بھی سنتا ہوں کہ یہ میرے وسیلے سے بچا، کہتے میں نے اپنے بزرگوں سے یہ اس نے میرے وسیلے سے نجات۔ اگر میں ایک اور بات معذرت کے ساتھ، میں کسی منسٹری کی خلاف بات نہیں کرتا، لیکن ایک بات جو بڑی ضروری ہے، وہ چونکہ پبلکلی ہوتی ہے، بس اب کسی کو شفا ملتی ہے تو وہ آ کے گواہی دینے کے لیے، ہم جی ملتان سے آئے ہیں، فلان جگہ سے آئے، کہ ہمیں یہ بیماری تھی، ہمارے لیے دعا کی گئی اور میں ٹھیک ہوں، تو پوچھا جاتا ہے کس نے شفا دی؟ یسوع مسیح نے۔ کس نے دعا کی؟ سرور مسیح۔ تو یسوع مسیح اور سرور مسیح دونوں برابر کے۔ تم سرور پادری سرور کیوں اپنا نام ہائی لائٹ کر رہا ہے؟ تاکہ لوگ جانیں کہ میں بڑی چیز، میں بڑا اچھا منسٹر ہوں۔ تو اس کا خیال رکھیں، جلال یسوع کو ملے، ہائی لائٹ ہماری زندگیوں سے یسوع ہو، تو تب ہم اس کے فالوور ہیں، تب ہم نے صلیب اٹھائی، اور تب بہت سے خادموں کو جب خدا نے بلایا، موسیٰ نے کہا میں تو توتلا ہوں، اور پھر جب داؤد کو بلایا میں نے چھوٹا ہوں، میں دوسروں کے میں تو چھوٹے خاندان کا ہوں، اور جب اس کو دوسروں کو بہت سے خادموں کو گڈین کو بلایا گیا تو کہنے لگا ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، ہم میں کچھ طاقت نہیں۔ تو پھر خدا نے کہا کہ طاقت تو میں ہوں۔ موسیٰ سے بھی یہ کہا کہ تو میری جگہ نبی ہوگا، تیرا بھائی تیری جگہ موسیٰ ہوگا، تو میں سب کچھ کرنے والا ہوں۔ تو جب فوج پیچھے آ رہی تھی موسیٰ اور لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے، تو پھر لوگ اس کو مارنا چاہتے تھے، موسیٰ نے کہا کہ چپ چاپ کھڑے ہو جاؤ اور خدا کی نجات کے کام دیکھو۔ موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں لاٹھی اٹھاتا ہوں، یہ پانی دو اس سے ہو جائے گا، اس نے کہا چپ چاپ کھڑے رہو، خدا کی نجات کے کام دیکھو، اور کام تو خدا کرتا ہے۔ ہم نے وہ منسٹری جو خادم سمجھتے ہیں کہ مجھے خدا بہت استعمال کرتا، یہ بڑے عام فکرے، لیکن ایک خادم تھا امریکن، وہ 16 میں آسمان پر چلا گیا، وہ پیراشوٹر تھا، اور اس نے دوسری جنگ عظیم لڑی،
और फिर वियतनाम की जंग लड़ी, एक और जंग लड़ी। तो कहने लगे वो फिर वो ट्रेनिंग करके आ गया और वो एक यूनिट का पादरी बना। उसने बताया कि मैं एक दुआया ग्रुप मीटिंग में गया, कोई मुझे ले गया और मेरे पैसे फीस की। यहाँ तो हम खाना भी पेश करते हैं और लोगों को कलम पेंसिल भी देते हैं। दूसरों मुल्क में लोग जब दुआया मीटिंग में जाते हैं तो अपनी फीस भी देते हैं, कुर्सी के पैसे भी देते हैं और कलाम सुनते हैं। कहने लगे, मुझे कहा गया कि जी पादी साहब आपके लिए दुआ करें। कुछ बहनों का ग्रुप था, आप ये बात सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा जी दुआ करें, तो उन्होंने कुर्सी पे बिठा दिया। तो पूछा कि जी चैपलिन साहब आपके लिए क्या दुआ करें? कहने कि मेरे लिए ये दुआ करें कि खुदा मुझे बड़े ज़ोर के साथ, कुदरत के साथ इस्तेमाल करे। तो वो चारों तरफ खड़ी थी, वो दुआ करने लगी। तो एक बात जो कहना कि मैं गुनूदगी में आ गया और मैं रोया देखने लगा कि मैंने ये कहा कि खुदा मुझे कसरत के साथ इस्तेमाल करे। लेकिन आगे जो बात है बड़ी गैर यकीनी लगी। कहने लगे मैंने देखा कि मैं कुर्सी पे बैठा हूँ और यीशु मसीह मेरे सामने बैठा, मेरे घुटनों को उसने पकड़ा। तो उसने कहा, करोथर ये दुआ ना कर कि मैं तुझे कसरत से इस्तेमाल करूं, ये दुआ कर कि तू मुझे कसरत से इस्तेमाल करे। गला में होश में आ गया, मैंने उनको बताया और फिर मैं माफ़ी मांगी। फिर मैंने कहा ये दुआ करें कि मेरी ज़िंदगी में यीशु कसरत से इस्तेमाल हो। तो उन्होंने दुआ की। कहने कि जब वहाँ चला गया तो फ़ौज में एक अफसर था, एक बड़ा अफसर, उसके सामने से लोग उसके दफ्तर के सामने से गुजरने से कतराते थे। वो बड़ा चिड़चिड़ा था, बदमिजाज था, बड़ा सख्त आदमी। कहना कि लेकिन मैं सीधा उसके कमरे में गया तो मैंने जाते ही कहा कि सर हैव यू एवर लिसन अबाउट क्राइस्ट? तो कहना वो रोने लगा, जो सख्त मिजाज था। उसने कहा, क्रोथर यू नेवर टोल्ड मी अबाउट जीसस क्राइस्ट, आई नीड जीसस। तो उसने रो रो के दुआ की और वो निजात पा गया। उसके बाद कहना कि मैं एक अफसर के पास गया जो उससे जूनियर था, तो उसका नाम लेकर मैंने उसे कहा कि हैव यू हर्ड अबाउट जीसस? तो वो भी रोने लगा, कहने के सर यू नेवर टोल्ड मी अबाउट जीसस, आई नीड। तो उसको बताया। उसके बाद सैकड़ों यानी 150-200 फौजी, अमेरिकन फौजी हर रोज़ यीशु को कबूल करते थे, क्योंकि अब यीशु उसकी ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रहा है। तो कलीसिया जलाल क्रेडिट किसको मिलता? क्रेडिट उसको मिलता है जो इस्तेमाल हो रहा है। हम तो इंस्ट्रूमेंट हैं और वो भी मट्टी के, जिसकी कोई हैसियत नहीं। खजाना तो कीमती है, हमारी तो कोई हैसियत नहीं। हम कहते हैं जी मेरी खिदमत में बड़े मौजे हुए, मौजे उसने किए थे। मेरी खिदमत में इतने लोग हैं, सैकड़ों, ये सैकड़ों हजारों की जो तादाद देखते हैं, ये इस बात का सबूत नहीं कि आप बड़े अच्छे खादम हैं, बड़े रूहानी हैं, बड़े करीब हैं। सबूत ये है कि कितने लोगों ने मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, कितने लोगों ने अपनी खुदी से इनकार किया, कितने लोग हर रोज़ अपनी सलीब उठा के दूसरों के लिए नमूना बन रहे हैं, और कितने लोग मसीह के पीछे इस अंदाज से चल रहे हैं जिस तरह यीशु चाहता है। आपने कभी गंदम की कटाई देखी? किसी ने नहीं देखी। बहुत शुक्रिया। अब तो खैर वो मशीनों से, पहले हाथ से काटी जाती। मैंने ये काम किया, मेरे बाप ज़मींदारी करते थे। साधु सुंदर सिंह एक कटाई हो रही थी, वहाँ जाके इंजील सुनाने लगे। एक नौजवान उठा, उसने इतने ज़ोर से थप्पड़ मारा, साधु सुंदर गिर गया, चक्कर आ गए। जब होश आया तो चले गए, फिर वापस आ गए। खुद ही से इनकार करना। तो वापस आए तो वो नौजवान बुखार में पड़ा था। पहले तो उसके लिए दुआ की, फिर उसकी दरांती लेकर उसके हिस्से की गंदम शाम तक काटते रहे, फिर पूले बांधे, फिर एक जगह लगाते हैं, उसको पस्सा कहते हैं। और वो जगह पिघल गया। उसने रो रो के यीशु की हजूरी में दुआ की और वो निजात पा गए। अपनी खुद ही से इनकार करना, अपनी सलीब उठाना, दुखों से
गुजरना है और फिर उसके पीछे हम चलने के काबिल हैं होते हैं। जब लोगों ने ये सब कुछ किया, ये रसूलों ने सवाए यूहन्ना सारे शहीद हुए, किसी का सर कलम किया गया, किसी को किंगरे से गिरा दिया गया, किसी को आरे से चीर दिया गया और लूका रसूल को एक दरख्त के साथ बांध दिया, लटका दिया गया। और एक सेंट लारेंस एक शख्स थे, उसको उन्होंने तवे पे लिटा दिया, उसको आयरन उसको कहते थे। तो फिर बादशाह ने कहा कि इसके नीचे जो आग जलाई जाती है वो स्लो कर दी जाए ताकि ये देर तक मरता रहे। तो जब वो एक साइड में वो हिला भी नहीं, उसको कहा गया कि मसीह का इनकार कर दो, उसने कहा यही तो नहीं कर सकते। तो जब एक तरफ जल गई तो उसने कहा वन साइड इज ग्रिल्ड टर्न एंड बाइट, यानी मेरा एक हिस्सा ग्रिल हो चुका है, वो पक गया है, उसको बदलो और खा लो। और एक शौक थे वो उसको उनका टाइटल दिया गया वीट ऑफ द क्राइस्ट, इग्नेशियस उसका नाम था। जब वो शहीद होने लगा तो उसने कहा आई एम द वीट ऑफ द क्राइस्ट, यानी मैं मसीह के लिए गंदम का दाना हूँ। और गंदम का दाना मसीह ने कहा जब बोया जाता है तो 100 गुना फल लगा, वो मर जाता है, लेकिन उसके अंदर एक बीज है और वो कलाम का बीज है। जब कलाम आपकी ज़िंदगी में है, ये ज़िंदगी तो ख़त्म हो सकती, वो कलाम जो आपके अंदर है वो ख़त्म नहीं होगा। और फिर उसने कहा कि मुझसे बहुत से लोग पैदा होंगे। और यही है कि जब कोई एक शहीद होता, उसके खून को देखकर बहुत से लोग तौबा करते और वो मसीह को लाखों मिसालें। इसलिए ये कहा जाता है कि शहीदों का खून कलीसिया का ब्लड ऑफ द मर्डर इज द सीड ऑफ द चर्च। तो मसीह के पीछे चलने के जुर्म में हम ख़त्म नहीं होंगे, हलाक नहीं होंगे, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होंगे। तो 3 बातें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी। वी मस्ट डिनाई आवर सेल्फ, अगर हमने उसके पीछे जाना है। वी मस्ट कैरी आवर क्रॉस एवरी डे और वी मस्ट फॉलो जीसस। तो हमें हर रोज़ अपनी स्लीप उठानी है, हर रोज़ अपनी खुदी से इनकार करना है और फिर हम उसके पीछे जब चलेंगे तो बहुत से लोग मुतासर होंगे, बहुत से लोग आपके किरदार को देखकर यीशु मसीह को कबूल करेंगे और वो भी निजात पाएंगे। ये मेरा और आपका काम है कि हम इस तरह से काम करें। खुदावंद आपको बरकत दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तसल्ली से बैठे रहे, सुनते रहे। Peace of the Lord Jesus Christ be with you. God bless you and I love you. Thank you so much.